Hello all. So today's topic that is empirical formula. हम लोगों ने बहुत सारे formulas we had already discussed regarding molar mass and molecular formula, chemical formula. Now this is empirical formula. What is empirical formula? The name itself suggests that many things. Empirical formula means the simplest whole number ratio of various atoms present in the compound. That is called empirical formula. But particularly if the mass percent is known of that particular various elements of the compound, then and then only empirical formula can be obtained. So let us start with the definition of empirical formula. What is empirical formula? So empirical formula, it represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in a compound or present in a molecule of the compound. Right? This is called empirical formula. Right? Empirical formula कब ढूंढ सकते हैं? If mass percent are known, तभी हम ढूंढ सकते हैं empirical formula can be determined. And molecular formula कब मिल सकता है? Molecular formula can be determined if molar mass is known. Right? Molecular formula can be determined if the molar mass is known, and this particular empirical formula is determined when only mass percents are known. So let us understand with this one very simple example. It's a very small unit. Okay, so this is the example. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% of chlorine. Its molar mass is given, that is 98.96 gram. Now what are its empirical formula as well as chemical or molecular formula, that we have to find out. So there are some steps. So let us discuss one by one. So यहाँ पे हमको सबसे पहले याद रखना है कि कौन से परसेंटेज और किसके एटम के हैं. हाइड्रोजन का 4.07, कार्बन के लिए 24.27 एंड क्लोरीन के लिए 71.65%. राइट. सो फर्स्ट स्टेप 1,
स्टेप 1 क्या बोल रहा है, द कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम्स. फर्स्ट स्टेप, conversion of mass percent into grams. So in this case let us consider this mass percent as 100. definitely इन तीनों का टोटल होगा वो 100 ही होगा. so उसको पकड़ के हम चलते हैं. then definitely thus considering compound is equal to 100 ग्राम. सो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 4.07 ग्राम, कन्वर्ट कर रहे हैं. कार्बन के लिए हो जाएगा दैट इज 24.27 ग्राम. एंड क्लोरीन के लिए होगा दैट इज 71.65 ग्राम. तीनों हो गया. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप, right, convert these numbers into number of moles. Now convert into number of moles. अभी moles में convert करने के लिए क्या करेंगे? So simple method, that is divide this given mass by atomic mass of each element or each atom. हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढते हैं? m अपॉन m, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे हमको मोलर मास ये नहीं लेना है, बट पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं. सो एटॉमिक मास. सो लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. moles of hydrogen, that is 4.07 ग्राम अपॉन उसका एटॉमिक मास 1.008 ग्राम. तो ये मिलेगा हमको ऑलमोस्ट 4.04 मोल्स. ओके, फर्स्ट स्टेप 4.04 मोल्स. नेक्स्ट, मोल्स ऑफ कार्बन. that is equal to moles of carbon 24.27 ग्राम अपॉन 1 नहीं आएगा इसमें, तो कार्बन है तो 12.01 ग्राम इज इक्वल टू 2.021 मोल्स. ओके, नेक्स्ट, मोल्स ऑफ क्लोरीन. दैट इज हमको दे दिया है 71.65 ग्राम अपॉन 35.453 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन. 45.5 है, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज दैट इज 35.453. इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 2.021. ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप. तीनों के नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लिए. Now step 3. स्टेप 3 क्या कह रहा है कि ये जो मोल नंबर हमको मिले, नंबर ऑफ मोल्स मिले, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर है 2.021. सो डिवाइड द मोल नंबर ऑब्टेन बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. डिवाइड द मोल नंबर obtain
बाय स्मॉलेस्ट नंबर से हम उसको डिवाइड करते हैं। सो क्या इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर है 2.021 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। 0 to 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो अगर हम फर्स्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन टू क्लोरीन अगर हम करें, हाइड्रोजन कितना है 4.04, उसको डिवाइड करेंगे हम 2.021 से। सो 4.04 और 2.02 ऑलमोस्ट आ जाएगा 2, डिवाइड करेंगे तो कार्बन के लिए हो जाएगा दैट इज 1 ओनली, इससे ही डिवाइड होगा, और हाइड्रोक्लोरीन के लिए भी सेम, तो ये बनेगा 2 जैम 1 जैम 1। अभी मान लीजिए कि इफ द रेशियो इज नॉट इन होल नंबर, द रेशियो अगर होल नंबर में नहीं मिल रहा है, सपोज ये 2 हमको डायरेक्ट मिल गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1.95 मिले, 1.25 मिले, अगर हमको 2.02 मिले, लाइक दिस। अगर ये जो पर्टिकुलर होल नंबर नहीं मिला तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है बाय मल्टीप्लाइंग सिंपल नंबर। जैसे हम सपोज 1.95, 2.25, 3.48 ऐसा कुछ मिले तो it's going to be multiply with the suitable coefficient, then we'll get the whole number, right? So here we are getting directly that number also whole number. So step number 4, that is write the Ampere formula. Chalo. So now let us write step number 4. Step number 4, that is writing empirical formula right. Now we got that हाइड्रोजन, एक बार और लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, इसका होल नंबर रेशियो दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट इट, दैट इज 2 जैम 1 जैम 1. So empirical formula is if we write it, so C is 1 because पहले कार्बन लिखा जाता है, हाइड्रोजन 2 तो CH2 and Cl. That's it. This is our empirical formula, CH2Cl. Okay, so CH2Cl is the empirical formula. First step एक बार और देख लेते हैं. Step 1, that is conversion of mass percent into gram. ये जो मास परसेंट दिया है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सिंपली 100 ग्राम लेके उसको ग्राम लिख दिया. नाउ कन्वर्ट इनटू मोल्स, तो रिगार्डिंग जो हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक मास, कार्बन है तो उसका एटॉमिक मास, एंड क्लोरीन है तो उसका एटॉमिक मास, रिगार्डिंग दैट गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, कन्वर्ट नंबर ऑफ मोल्स, राइट. सो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो कन्वर्ट होगा लाइक दिस, जो दिया है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. नाउ स्टेप 3, इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे, जैसे हम एलसीएम में करते हैं. सो 2.01 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो रेशियो मिला 2 जैम 1 जैम 1. अगर सपोज होल नंबर रेशियो नहीं मिल रहा है तो उसको सुटेबल कोएफिशिएंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द होल नंबर. एंड लास्ट दैट सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं एट जेम सी जेम सी एल, जो रेशियो हमको मिला 2 जेम 1 जेम 1, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2Cl. सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट स्टेप 5. स्टेप 5 में हम क्या लिखते हैं, अभी ढूंढना है राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाउ वी आर फाइंडिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो फर्स्ट एक चीज सिंपल याद रखना, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका हमको सबसे पहले फॉर्मूला मास ढूंढना पड़ेगा.
राइट। सो फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर दैट इज डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो कार्बन प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, कार्बन एटॉमिक मास 12.01, हाइड्रोजन 1.008 एंड क्लोरीन 35.453। तीनों का टोटल करेंगे देन इट इज 49.48 ग्राम। दिस इज फर्स्ट स्टेप, determine the empirical formula mass. Second step, that is we divide molar mass by empirical formula mass। यानी मोलर मास है उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अभी जो ढूंढा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास हमको ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है, right? Its molar mass is 98.96 gram. So 98.96 ग्राम अपॉन यहाँ पे हमको मिला दैट इज 49.48 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 2, दैट इज आवर एन। नाउ ये स्टेप है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमको मिल गया 2। So next step C में क्या करना है हमको, this multiply this formula by n, multiply empirical formula by n, that is equal to 2। n इक्वल टू 2 जो मिला उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ये जो मिला वो CH2Cl को। तो इफ वी राइट इट एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज CH2Cl and molecular formula राइट, ये कंप्लीट है, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2 करना है। सो ये मिल जाएगा C2H4 and Cl2। दिस इज आवर मोलेक्युलर फॉर्मूला, राइट। सिंपल है, कुछ नहीं है। स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ओके, स्टेप 1 क्या है, कन्वर्जन। इसको जो परसेंटेज है उसको ग्राम में कन्वर्ट किया। सेकंड, ये जो ग्राम मिला तो एटॉमिक मास जिसका एलिमेंट है उससे डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद नंबर ऑफ जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे हमने डिवाइड किया तो रेशियो मिल गया। अगर रेशियो होल नंबर में नहीं है तो सूटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको उसका रेशियो भी मिल जाएगा, राइट। उसके बाद स्टेप 4 में एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं CH2Cl लाइक दिस। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात आती है तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसका फॉर्मूला मास हम ढूंढते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी मोलर मास दिया हुआ होता है, उससे हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। सो एक नंबर मिलेगा। अगर नहीं है तो अगेन 2.73 आया तो 2.7 है तो 3 कर देना है, एक प्लस कर देना है। हमने आगे भी पढ़ा हुआ है कि राउंडिंग ऑफ में कैसे करते हैं।
और अगर 3.2 आया है तो उसको 3 कर देना है, लाइक दिस. सो ये हो गया हमारा डिवाइड मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला. अभी जो बाकी बचा उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दो, तो CH2Cl में C2 हो गया, 2 2 H4 हो गया और Cl2 हो गया. सो ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्सो. And today's assignment I am giving you just 2 questions, similar only. You have to find it, और very easy है. empirical formula और molecular formula ढूंढना है, तो आप easily उसको कर पाएंगे. ठीक है. So be safe, right? Stay at home and thank you very much.